So, good evening, दोस्तों. It's homecoming. सबसे बड़ी बात ये है, it feels very good to be back to the campus every time. और मैं यहीं बोचा छात्रावास में रहता था. Finished my MSc Electronics, then moved out. But I totally feel that BHU made me ready for the world. Staying outside, doing things, and still at the age of 48, starting a company, making it to probably $15 million in less than 2 years, raising funds, etc. Last grade goes to BHU. And we work in the area where we use AI a lot. We hunt threats which are detrimental to the society. We hunt threats which are bad for our digital security. And we understand how AI cheats us, and we develop model how do we cheat AI. So I will say, decent experience in understanding AI from the year 2017, where I wrote papers on supervised and unsupervised learning to be a little technical, but also understood that what Sir told, that this is a huge threat and this is a huge opportunity at the same time. If somebody can today say that, can we wipe out cancer? The answer is AI. If somebody can say that, can we wipe out human being? The answer is AI. The choice has to be ours. Now, and I'm neither pessimistic nor optimistic. I'm an opportunist guy. I make money, very simple. So now I see that AI can be used for me. Yes. Have I cut jobs because of AI? Of course I have. We had a decent team, and I told that if people don't move, put them into different work. This can be done by AI. We have done that. We have proven it. Today, we can say that when we talk to the investors, they love me as a CEO of a startup who says, I'm not going to put headcounts. I'm going to buy machines which are going to do more work. They don't have a chutti, Saturday, Sunday, no girlfriend, no boyfriend, no Holi, no Diwali. They just work. And I like them. I love them. But I'm also very careful that this is hitting me somewhere. So maybe they will become a CEO also and I'll lose my job. So we have to balance it out. Now, what Sir told, and I'll just take 2 more minutes to in my initial conversation on AI. AI can be fought with AI. All of you use WhatsApp, right? There's no exception. Have you ever tried Llama 2 in that? That's an AI chat box already built in. Question, how do you fool AI? See what it writes. It's a very interesting conversation. There's something called game theory. Game theory says that you have opponent and your player, both of a similar nature. We created that model for AI, and we could fool one AI, could never understand that other person who is playing against that AI was also an AI. So there is a way, and there's a lot of research going on in that area. We are into some of those research, very high confidential, so not putting it here. But I can tell you, human society has grown. When Einstein predicted that the 4th World War will be the sticks, but there was no 3rd World War. So we are smart. Human society has controlled nuclear, elephants, and lastly, COVID. So be optimistic, but be plugged in. What Sir told to me, he's like a Krishna, and I'm like a doer, like a Arjuna who takes clues and starts building something. We all have to be role, and you are much younger. So you have to plug in yourself into this, because this is very clear. There is an AI-enabled or AI-aware professional, or there is no professional. So we have come to this. Today, when I hire people, I see that what is their AI skill. I don't look how much programming they need, except for 10% of the core programmers that is there. The way, when I grew up, 1997, I joined industry 1998, computer was the differentiator. If you knew computer, you were one class. If you didn't know computer, you were the other class. And jobs were tough, right? Today, the same is good with data sciences, analytics, and machine learning. And this is not for engineers. This is for humanities, commerce, medicine. That will be the first one to be hit. Pilots, drone is there. Maybe 1 or 2 more generations, right? Armenia lost the war because Azerbaijan could bomb it with, swarm it with the drones. So this is a fact that we have to coexist with machine. Either we take control of machine or machine takes control of it. It depends upon our collective intelligence. So today, population of the world is 7 billion. We have close to 100 million sapiens or neurons. The population of connected and smart machines is 8 to 25 billion now. Each of them holding 100 million transistors.
So technically what sir was saying, the machine intelligence is beyond human intelligence in raw power. But how do you control it? That's AI. We have to control that. We have to create those agents which work for us, not start misusing us like a deep fake or something like that. So it's a very important time for you. Each generation comes to a juncture. Maybe generation before us, for me, come at a time when automation or computer-aided machines were coming. I came at a time when the internet has come. Google was not there. So I pushed my skill to get the best jobs, could get it, survive, thrive, and I'm still there. So option is yours, what sir told very clearly. Take this opportunity. Don't think that AI is for engineers. It's like saying computer is for engineers. Everybody uses computers, right? I'm clear. Everybody uses cell phone. That's the way AI is. Be a partner to that. Be an AI, what we call is that AI digitally aware generation. You understand how will AI behave, you will control the AI. You understand how to use the AI, you will control it. It's like taming a wild dog. If you have tamed the dog, you will tame the dog. If you don't know how to tame the dog is going to run behind you. Humans are not strong physically, but we are mentally very strong. We know how to survive, and we will do that again. There I'll end up. Thank you. इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में शायद पूछने का मुझे सौभाग्य नहीं मिलेगा, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग हिंदी में सुनना चाहेंगे या अंग्रेज़ी में? ठीक है। फिर भी मैं अल्पमत में जो लोग हैं उनके लिए उनको बता दूं कि उनके लिए भी मैं कुछ कहूँगा। तो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ हिंदी में होगी, लेकिन मुझे जानना था कि कैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जहाँ हम खड़े हैं उसमें एक है गंगाय, ओम गंगाय नमः, और एक है शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या खास बात है इन दो बातों में, गंगाय और शिवाय? मैं पुरस्कार भी दे सकता हूं अगर आप थोड़ी सी उत्तेजित कर दें मुझे। जी, किसने बोला ये पहले? तो दोनों में एआई है, गंगाई में भी एआई है और शिवाय में भी एआई है। तो लोग क्या करते हैं कि दिल्ली, बंबई इत्यादि में जाकर बड़े बड़े सेमिनार में बात करते हैं और कई बार लगता है कि एआई हमसे बहुत दूर है, लेकिन आप तो एआई की नगरी में बैठे हैं। तो मेरा पूरा जो आज का उल्लेख होगा वो ये होगा कि करें तो कैसे, क्योंकि कई बार होता है कि बहुत बड़ी बड़ी बात सुनने के बाद भयभीत हो जाता है इंसान। We get frightened, we wonder how on earth to make the move। तो हाउ का भी मेरे पास एक हल्का सा एक फॉर्मूला है, वो साहब यहाँ पीछे बैठे हैं, वो थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो सांसद हैं उनका क्या नाम है? मोदी। और उन्होंने भी एआई का एक बड़ा अच्छा एक परिभाषा दी है, अच्छी परिभाषा दी है। कोई जानता है? अमेरिका इंडिया, वेल डन। मैं भूल गया था वो वाला। कोई और? मोदी जी ने कहा है एस्पिरेशनल इंडिया। AI मीन्स एस्पिरेशनल इंडिया। और वो सिर्फ स्लोगन नहीं है, वो एनवीडिया के चेयरमैन से जब बात करते हैं जेनसन हुआंग से, तो जेनसन हुआंग ने हाल फिलहाल ही एक सार्वजनिक सभा में बोला कि जिस डिटेल में वो कई वर्ष पहले से इस बारे में बात करते आ रहे हैं वो दंग है। वो दंग है एनवीडिया के चेयरमैन होते हुए भी कि भारत का जो सीईओ है, भारत देश का सीईओ, प्रधानमंत्री, वो कितनी डीप ज़्यादा है एआई से रिलेटेड भारत के उदय में। तो एस्पिरेशनल इंडिया साहब कैसे बनेगा? एस्पिरेशनल इंडिया जो हमारे पीछे लिखा है मदन मोहन मालवीय साहब, जो जिनकी वजह से हम लोग आज यहाँ खड़े हैं, इस विश्वविद्यालय को जहाँ दुनिया भर में लोग जानते हैं, जिसमें अजय जैसे बड़े पत्रकार और समाज के बारे में चिंता करने वाले व्यक्ति निकले हैं, वो उन्होंने कहा है कि युवाओं में राष्ट्र
राष्ट्रीयता के संस्कारों को सींच कर ही, युवाओं में राष्ट्रीयता के संस्कारों को सींच कर ही एक सबल राष्ट्र का निर्माण संभव है। संभव है साहब, और काशी में भी संभव है, क्योंकि यहां पर शिवाय भी है और गंगाएं भी है। अब कैसे होगा? आप कहेंगे ये तो कुछ लच्छेदार बात हो गई, आगे की बात बताइए। तो मैं दो चीजों का उल्लेख करना चाहूंगा, और जो अंग्रेजी में ही सुनना चाह रहे हैं वो एक बार जोर से मुझे हूट कर दें तो मैं अंग्रेजी में शिफ्ट कर सकता हूं, तब तक हिंदी में ही रहूंगा। देखिए आपकी आवाज में कोई बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिला आपको। तो देखिए मैं अभी हाल फिलहाल एक कंप्यूटर साइंसेस की गोष्ठी में गया, आईसिस उसका नाम है, अभी आप लोगों को मौका लगे तो वहाँ पेपर ज़रूर लिखिएगा, ICIS। उसमें मैंने देखा कि बाकी बहुत बड़े बड़े लोग काम कर रहे थे, बात कर रहे थे अपनी, लेकिन एक रेचल चुंग नाम की महिला थी, वो एक कोने में खड़ी हुई एक किताब के बारे में उल्लेख कर रही थी, और वो किताब कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड किताब नहीं थी साहब। वो किताब थी कि एक परिवार में एक डॉग को खरीदने के दौरान जो क्या बातचीत हो रही है उसके संदर्भ में उन्होंने एक पिक्टोरियल किताब लिखी थी, रेचल चुंग, आप उसको शायद लिंक्डइन पे देख सकते हैं। उनका मेन मानना था कि एआई में जो इनपुट है, जैसे आप लोगों में से ज्यादातर लोग शायद चैट जीपीटी के जरिए जवाब देना शुरू कर दिया होगा आपने, नहीं ऑफिशियली नहीं, मैं तो आपसे, और जो आउटपुट है वो आपको मिल जाता है, लगता है वाह क्या बात है, क्योंकि मैंने ही आज किया भाई, आई हैव टू डिलीवर अ स्पीच ऑन एआई इन काशी, व्हाट आर द आइडियाज। अरे तो 12-15 आइडिया दे दिए और काफी ठीक ठाक आइडिया थे, मतलब तो मेरी क्या जरूरत है, वो तो आप भी लिख सकते हैं और आप भी सुन सकते हैं। लेकिन रेचल चुंग ने साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे सिखाई कुछ बातचीत के दौरान, कि बीच में जो बॉक्स है, इनपुट लोग हम दे रहे हैं, आउटपुट आ रहा है धड़ाधड़, और शायद हमारी स्पीड से कई गुना ज्यादा स्पीड पर, लेकिन बीच में क्या हो रहा है? बीच में जो हो रहा है अगर हम नहीं समझेंगे, युवा होने के नाते, भारतीय होने के नाते, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हम सिर्फ एक मशीन की तरह इनपुट डालेंगे, आउटपुट मिलेगा, और बाकी टाइम हम यूनिवर्सिटी ऑफ नोवेयर या क्या उन्होंने कहा था, मैं भी दाखिला के फॉर्म भर दूंगा, लेकिन तब तक के लिए शायद जरूरी है कि उस बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है ये जानने के लिए हम लोगों को अपनी अपनी जो प्रवीणता है उसके आधार पर काम करना पड़ेगा। अगर हम लेखक हैं तो हम उस तरह से समझें कि ये होता क्या है इसके अंदर। जब चैट जीपीटी में लगाते हैं व्हाट डिड गांधी से अबाउट BHU, या व्हाट वाज गांधी स्पीच एट द इनॉग्रेशन ऑफ BHU, तो कुछ होता है फुर्र से और कुछ आ जाता है रिजल्ट, लेकिन बीच में ये होता क्या है, ये बॉक्स क्या है, और इस बॉक्स को साहिबान अगर आप नहीं समझेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, और बहुत ही जल्दी आपसे न सिर्फ मशीन, बाकी देशों के लोग भी आगे बढ़ेंगे जो बुनियादी तौर पे एआई को सीख रहे हैं। बुनियादी तौर पे यूज करना नहीं, यूज करना तो एक तरह का मनोरंजन है। आपने कुछ भी डाल दिया, उसने कह दिया टेल मी 8 बेस्ट फिल्म्स ऑफ एक्टर प्राण, वो आ जाएगा 10 फिल्म जो उसकी बड़ी हुई हैं, मजबूर, जंजीर, अमर अकबर एंथनी। बट दैट इज नॉट एआई माय फ्रेंड्स। एआई इज दैट व्हाट वेंट इन एंड हाउ आर यू एबल टू give it shape, and what are the narrations. I can go at the level of the conflict, imminent conflict between countries, communities and companies, but वो छोड़ें, अभी अपने लेवल पर बात करते हैं as students, fellow students। तो रेचल चुंग की मैंने बात की कि बीच में जो हो रहा है उसको जानना थोड़ा जरूरी है। दूसरी बात, एक बार मैं हाल फिलहाल ही सही एक मोपानासा स्ट्रीट है पेरिस में, वहाँ एक स्कल्पचर को मैंने देखा। स्कल्पचर लगा हुआ था और उसमें आधा एक आदमी था और आधा एक घोड़ा था। अब आप में से कोई भी अगर एक
दिमाग लगाए तो लगेगा कि भाई घोड़ा तो आदमी से ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन स्कल्प्टर है, उसको आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं, यहीं बैठे बैठे भी कर सकते हैं, आई डोंट माइंड। उसका नाम है सेजार, CESAR, सेजार। तो सेजार साहब ने कई वर्ष पहले अपनी ही मज़ार पर क्या लगाया जाए बुत, वो बनाया हुआ था, और उसी का एक रेप्लिका मेन पेरिस में एक स्ट्रीट जो मैंने जिक्र किया जिसका, वहाँ लगा हुआ था। नाउ व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? He has coined the concept of cyborg, and the whole idea is that there is a notion that when man and machine are working together, जब मशीन और आदमी साथ में काम करेंगे, तो आदमी अगर उसके ऊपर रहेगा तो मानवता का कल्याण होगा, और अगर मशीन आदमी के ऊपर रहेगी तो जैसे कि डीप ब्लू का जब कास्परोव से मुलाकात हुई थी सन 98 में, तो इंसान हार गया था। जब अल्फागो ने 37वां मूव, एक चाइनीज गेम है, उसमें अल्फागो और तब के वर्ल्ड चैंपियन के बीच में जब मुलाकात हुई, तो अल्फागो ने न सिर्फ उसको अच्छी तरह रगड़ा आदमी को, एक मूव अपने आप से कर दिया जो कोई प्रोग्रामर ने उसको नहीं दी थी। उस वक्त जो IBM कंपनी थी, उसने वॉटसन का भी, और जो कि कास्परोव से जिसने भिड़ंत की थी, और अल्फागो का निर्माण करना बंद कर दिया, क्योंकि वो थोड़ा घबरा गए कि ये तो मशीन अपने आप सोचने लग गई है। तो हम लोग कई ऐसे वाक्यों में जा सकते हैं और बिल्कुल इस हॉल से निकलते वक्त सोच सकते हैं कि भाई करें तो क्या करें, इन्होंने ये तो बताया नहीं है। द हाउ, व्हाट है, वेयर है, लेकिन वेयर इज द हाउ? तो हाउ में मैं तीसरा वो दूंगा आपको। हाउ में मैंने, क्योंकि साहब ने भी आर्मीनिया का जिक्र किया, तो हमारी आपस में वैसे बात पहले नहीं हुई थी, तो आई एम जस्ट टेकिंग इट फ्रॉम हियर। तो वहाँ मैंने देखा कि एक बड़े से विशाल हॉल में, विराट हॉल में कम से कम नहीं तो 1000 बच्चे अलग अलग सेक्टर्स में बैठकर एप्पल के बड़े बड़े डिवाइसेस थे उनके साथ खेल रहे थे, और वो स्कूल के बाद आते थे, और कुछ मॉड्यूल्स थे जिनके आधार पर वो जेन्युइन तरीके से क्या काम हो रहा है मशीन के अंदर, क्या चल रहा है, उसको, जैसे गोयल साहब ने दिखाया कि अंदर का जो खेल है, खेल में जब हम सीखते हैं तो शायद जल्दी सीखते हैं, तो उनको सिखाया जा रहा था। वो कुछ लोग, बच्चे तो मेरे ख्याल से 7-8 साल के होंगे, कुछ और थोड़े बड़े थे, और ऐसा मॉड्यूल उस छोटे से देश ने बनाया है जिसकी अच्छी खासी भूमि भी अतिक्रमण कर ली है उसके पड़ोसी ने, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ बनाया है जिसके आधार पर छोटे से बच्चे भी अपनी गुणवत्ता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार वहाँ पर सीख सकते हैं। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड, जो फिल्मिंग से रिलेटेड, जो डिजिटल आगे युग आने वाला है, तो जब उसके अंदर की बात आप समझने लग जाएंगे और अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, तो फिर आपका जो फ्यूचर है, जिसमें लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नौकरियां जाएंगी, कहते हैं ना, हु विल AI टेक जॉब्स, तो उसके लिए ब्रायन जॉनसन साहब ने बड़ा अच्छा कहा है कि AI विल नॉट टेक जॉब्स। थोड़ा सुन लें इसको, क्या है, AI विल नॉट टेक जॉब्स, those who know AI will take jobs of those who don't. AI किसी का जॉब नहीं लेने वाला साहिबान, जिसको AI पता है वो उसका जॉब ले सकता है या शायद लेगा, जिसको AI नहीं पता है। तो AI को सिर्फ यूज करने से, आप तो गूगल मैप्स यूज करते तो वो तो AI है, AI बेस्ड है, आपको इसके प्रवीण थोड़ी हो गए कोई उसकी वजह से, तो एक मात्र यूजर है, उसका डेटा आप गूगल को दे रहे हैं, गूगल उस पर अरबों रुपए की उसकी मार्केट वैल्यू है। आपको देखना है कि आप उस विराट किस्म का जो क्रांति विश्व के सामने होने वाली है या हो रही है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, उसमें आपका क्या रोल होगा।
और आपके क्षेत्र से संबंधित जो काम है उसमें आपका एआई का क्या पुट डालना है, जिससे आप सेजार की तरह आप घोड़े को अपने पीछे रखें और इंसान का चेहरा, इंसान का बुत उसको ड्राइव करे। तो उसको उन्होंने सेंटोर मॉडल करके, करीम लखानी हैं एक बड़े प्रसिद्ध एआई के विशेषज्ञ हैं जो हार्वर्ड में पढ़ाते भी हैं। तो करीम लखानी ने एक अभी रिसर्च की है बेन कंसल्टिंग के 700 करीब रिसर्चर्स के साथ, और उन्होंने एक देखा कि एआई के जो कुछ तो मूर्ख थे लोग 700 में से, तो वो तो बहुत उनका जो लेवल था बढ़ गया एआई यूज करने से, लेकिन जो बहुत समझदार थे वो मूर्ख बन गए, क्योंकि एआई के बाद यूज होते होते उनको अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का कोई खास औचित्य नहीं दिखाई दिया। तो मैं इसको अनमिक्स्ड ब्लेसिंग ही कहूंगा, लेकिन इसके वर्किंग को समझने के लिए मैंने सोचा कि हाउ पर थोड़ा सा एक छोटा सा मध्यांतर लेता हूं। और मेरे साथ मेरे एक सहयोगी आए हैं, मेरे मित्र हैं जो मुझे आर्मेनिया में मिले थे, जो एक बाकायदा एक स्कूल चला रहे हैं जिसमें यंग बच्चे जाते हैं और कुछ टीचर्स भी एआई के लिए ट्रेन हुए हैं, और ये दोनों मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जिसके आधार पर एक डालबर्ग करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मैप किया कि जिन बच्चों ने ये कोर्सेज किए और उन्हीं के प्रकार के अन्य बच्चे जिन्होंने वो कोर्स नहीं किए, क्या फर्क हुआ उनके आय पर, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस पर, उनकी एआई को समझने की जो प्रवीणता है, क्या उन्हें कोई ठोस फायदा हुआ। तो अगर आप चाहें तो मैं उनको 2-4 मिनट के लिए न्योता देता हूं कि आपको बताएं कि आर्मेनिया में ही सही, लेकिन क्या ये संभव है, क्या ये मुमकिन है कबीर। बिफोर वी गेट कबीर जी, मैं आप लोगों को कहूंगा स्टेज पे रहें प्लीज, क्योंकि कई सवाल मेरे पास आए हैं जो मैं चाहूंगा आप और इसके बाद दिव्यांशु थोड़ा। नॉट गोइंग एनीवेयर, so I'll not let you go anywhere, no, sir. I'm not going anywhere. We have a very good crowd, so they will not let you go. No, you have to lift both of us out. We will stay till the end. नहीं सर, तो बस यही मैं बोल रहा था। थैंक यू रोहित जी। तो मैं भी हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं बम्बई से हूँ तो मेरी हिंदी बम्बई वाली है, तो अपॉलॉजीज इन एडवांस। तो जैसे सर बोल रहे थे, तो टूमो में हम बच्चों से लेकर 18, 19, 20 साल के लोगों तक उनके साथ काम करते हैं कि उनको सिखाने के लिए कि हाउ डू यू एक्चुअली नो एआई, ताकि जब ये एआई वेव हिट होती है, इंस्टेड ऑफ बीइंग पुश्ड आउट, यू आर एक्चुअली द वन सर्फिंग द वेव। और जब डालबर्ग संस्था ने ये जो रिसर्च किया उसके बारे में, तो ये टूमो पिछले 15 साल से उनका काम चल रहा है आर्मेनिया में, हमारा काम। और हमने देखा कि जो लोग 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले टूमो के थ्रू गए, एक तो वो 3 या 4 गुना ज़्यादा लाइकली थे टेक और क्रिएटिव फील्ड्स में काम करने वाले लोग थे। तो अनलाइक अ लॉट ऑफ सेक्टर्स विच आर गेटिंग हिट बाय द वेव एंड गेटिंग वॉश्ड आउट, they were the ones who were actually controlling their own destiny. And एक बहुत interesting चीज़ भी आई थी उस स्टडी में कि the TUMO alumni were about 75% more likely to say कि पिछले 1 साल में उन्हें एक कोई नई स्किल सीखी है। तो ऐसा नहीं कि वो अभी तक TUMO में जा रहे हैं, ये लोग मतलब लेट 20s 30s की एज में पहुंच गए हैं, लेकिन by learning how to learn and staying in one step ahead of where the technology is going, being able to actually make the most of the technology rather than getting washed away by it. और लास्ट जो चीज़ बहुत, और वो काफ़ी मतलब वो स्टडी हम आपके साथ लिंक भी शेयर कर सकते हैं, there's lots of data analysis etc. लेकिन at the end of the day, ये पहले गोयल जी के साथ भी ये डिस्कशन हुई थी कि everyone does want successful careers, and the final point was कि जो लोग टूमो के थ्रू गए, जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे और क्रिएट कर रहे थे, सिर्फ यूज़ ही नहीं बट क्रिएट, उनकी सैलरी, उनकी लाइफ टाइम अर्निंग्स were about 3.5 times higher than very similar comparable people who did not go through the program. So maybe I will just leave with that and so back to you. But
क्वेश्चंस में इनका क्वेश्चंस रोहित जी एंड दिव्यांशु, क्वेश्चंस पर से मैं नहीं, आई विल नॉट गेट इनटू द क्वेश्चन पार्ट, क्योंकि फिर वो एक एंडलेस सेशन हो जाता है। तो एक थोड़ा सा टाइम में मैं चाहूंगा कि इस डिस्कशन को आप लोग थोड़ी देर अपने कैरी कर सकें, जैसे जो चीजें जनरली निकल करके आई कि एआई में, मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूं कि एक संस्कृत का स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, या फिलॉसफी का स्टूडेंट है, सोशियोलॉजी का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, जर्नलिज्म का स्टूडेंट है। तो एआई बेसिकली कितना एनेबल करेगा उसको अपना जीवन, मतलब कि इज इट पॉसिबल कि वो बच्चा कोई भी हो वो एआई में आ सके, एआई सीख सके, एआई से अपने काम को बढ़ा सके, जीवन से बढ़ा सके। इस पे मैं आप लोग दोनों लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं। इसमें मैं, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एट ऑल, मेरा जो फील्ड है मैं उसको भी जोर देता हूं, जिसपे भी कुछ सवाल आए वो भी आप डिस्कशन में ले सकते हैं। एक वर्ल्ड ऑर्डर हम लोग वर्ड सुनते हैं, यूएस जिसका बॉस है और चैलेंजर है चाइना। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर जब एआई टोटली दोनों देशों में एक कंपटीशन सा है एआई को लेकर के, तो ये वर्ल्ड ऑर्डर पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है अगर दोनों देश एआई और हिंदुस्तान इस आज की तारीख में हिंदुस्तान इस पूरी स्टोरी का पार्ट कहां है? जो फ्यूचर नेगोशिएशंस होते हैं, चाहे वो ट्रेड के हों, चाहे वो और बड़ी चीजों के हों, तो एआई मतलब कैसे इकोनॉमीज को इंपैक्ट कर रहा है कि मतलब जिसको कहा जाए ना कि एक मतलब दुनिया का जो ऑर्डर बदल रहा है जिसमें इकोनॉमी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा, उसमें एआई कितना एनेबलिंग होगा। और मैं हर चीज में चाहूंगा ना कि आप हिंदुस्तान का हम लोग थोड़ी सी एक चर्चा कर सकें, क्योंकि वो रिलेवेंट होगा ऑडियंस के लिए भी। और ये कॉन्वर्सेशन आपके बीच है, थोड़ी देर हम लोग मैं पहले आपसे बिल्कुल ही रेलिवेंट जो चीजें उस पर आता हूं। जैसे को निकाल ही गुड, हाँ दिस गुड, अच्छा ठीक, दिस इज मतलब हाँ, जैसे अभी जब हम कैंपस में थे, टेकिंग यू टू 1996, जॉब वाज द एस्पिरेशन, सबके लिए होता है, राइट? अभी एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो एस्पिरेशन। तो अभी जैसे अगर आप हिंदुस्तान को लें तो हम थर्ड लार्जेस्ट एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम है। जिस शहर बैंगलोर में मैं रहता हूं और 20 साल से रहता हूं, वहां पे एक लंका से लेके पूरा बीएचयू के एरिया में 10,000 करोड़ वाली 30 कंपनियां हैं उसी एरिया में। तो इसमें से जब एआई की बात हम करते हैं या हम ऐसी चीज की बात करते हैं, तो मैं आपको पॉजिटिव साइड में लेके जा रहा हूं कि आपके लिए क्या अवेलेबल है। इसमें से सारी कंपनी जो है टेक्नोलॉजी की नहीं है। इसमें से बहुत सारी कंपनी इस टेक्नोलॉजी को, जैसे मयंक ने बताया, वो फार्मेस्ट्री के लिए यूज करती है। इसमें से बहुत सारी कंपनी दुनिया की सबसे अच्छी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स बनाती हैं, जो कि आपको किसी, जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर है, तो डॉक्टर का एक लैंग्वेज होता है, राइट? ऑर्थोपेडिक्स है, मतलब जो नॉर्मल इंग्लिश में नहीं बोली जाती है, उसको वो कॉन्टेक्स्ट देती है। अब ये कहां से आया? तो उसके जो दो फाउंडर जिनको मैं जानता हूं बहुत अच्छे से, और दोनों की अभी कंपनी की वर्थ 4,000 करोड़ से ऊपर है, दोनों ही एक सारे ऑलमोस्ट यूनिकॉर्न पहुंच गई है 10,000 करोड़ के आसपास। दोनों को इस बात का ज्ञान था, एंड दे आर वेल अवेयर दैट अगर हम एआई और मशीन लर्निंग को मेन स्ट्रीम कर देंगे तो हम एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं ताकि एक पेशेंट जिसको आज की डेट में यह जानना है कि मेरा जो डॉक्टर से इनपुट आया वो कितना एक्यूरेट था, या 4 और डॉक्टर इस पे क्या बोले होते, तो उसने एक एप्लीकेशन बनाया। नाउ विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे काफी सारे कंट्रीज जहां की नंबर ऑफ डॉक्टर्स बहुत कम है, वो उसको यूज करते हैं। नन ऑफ देम आर इंजीनियर्स। एक सर की तरह जर्नलिज्म के फील्ड से हैं और दूसरा मैथमेटिशियन है, बट उनको एआई की इस ट्रेंड का आइडिया 2-3-4 साल पहले लगा था। तो एआई ऑल्सो फॉर अ यंग स्टूडेंट हु हैज द एज ऑफ 23, 24 या 22, जो आप लोग का एज है,
उसके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी खोलता है ताकि आप तो पहले से ही डिजिटल फर्स्ट हैं, मतलब आपका जो ऐप यूसेज है वो हम लोग से ज्यादा है, राइट? तो आपको एआई अडॉप्ट करना आपके लिए नेचुरल स्टेप, ओनली थिंग है टू स्टार्ट। अब ये अगर स्टार्ट नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, है ना? जैसे मैंने आपको बताया कि हम लामा यूज करते हैं काफी व्हाट्सएप के लिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है लामा में फीड करके हमको समझ में आता है ये डीप फेक है ना? बिकॉज लामा जैसा जवाब उसका आना शुरू हो जाता है, देन आई नो कि somebody is sending me fake tips or whatever it is, right? तो आप जितना इसमें यूज करेंगे और आप अपने क्षेत्र में जितना यूज करेंगे, आप उतना इफेक्टिव प्रोफेशनल बन जाएंगे, क्योंकि आपका नेचुरल स्टेप क्या है? आइदर यू विल बिकम एन एंटरप्रेन्योर और यू विल गो एंड जॉइन अ जॉब। आई विल बेट यू टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, जॉब क्रिएटर्स। दैट्स माय पर्सनल डिजायर फॉर ऑल ऑफ यू। लेकिन मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि अगर आप इसको यूज करना करते हैं, अभी यूज करना शुरू करते हैं, जैसे उन्होंने आर्मीनिया का बताया, तो यू विल बी टेक्निकली अहेड ऑफ 80% जो दुनिया में आपके एज ग्रुप के लोग हैं, जिससे शायद आपका कंपटीशन हो सकता है, उससे आप आगे हो जाते हैं 3 से 5 साल। तो अगर मान लीजिए कल को मेटा को और भी वर्कफोर्स पढ़ानी है और उसको लगता है कि बीएचयू में ऐसे एनालिटिक्स और एआई के बहुत सारे बच्चे हैं जो अक्रॉस द स्ट्रीम है, वो संस्कृत में भी हैं और मेडिसिन में भी हैं और हिंदी में भी हैं, तो मेटा जो कि अपने को एजीआई बताता है ना, या लामा जो उनका एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं, उसके लिए पहला रिक्रूटमेंट हब बीएचयू बन जाता है। बिकॉज उसको बढ़ाना है, बिकॉज दे आर कॉम्पिटिंग अगेंस्ट गूगल्स एंड ओपन एआईज एंड मेनी अदर्स। उनकी आपस की रेस चल रही है एंड दे नीड पीपल हु अंडरस्टैंड दिस एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 years, जब तक कि एजीआई से वो ज्यादा चीज नहीं कर लेते। इट्स ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी। सेकेंड जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जैसे कि आप में से कुछ लोग जो पोस्ट स्पेशलाइजेशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, they can solve some very big problem. I gave an example of medicine. Now, medicine doesn't mean only Western medicine. It also means Ayurveda, it also means Unani, also means homeopathy. The problems are same, one has to be fit, right? और general health. इसमें अगर कोई आदमी AI को लेके स्टडी करता है, it is a huge opportunity opening up कि ये जो पीछे रह गई थी स्ट्रीम्स कुछ, वो अपने आप आगे आ जाती है। जैसे तीसरी बात जो मैं आपको बताता हूं, जैसे टीचिंग की बात हुई, अब जब आप में से कुछ को अगर टीचर बनना है, उन्होंने बीएड और इस तरह के और सब्जेक्ट लिए हैं, जो कि मतलब एजुकेशन लिया है, या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, नाउ दे कैन हैव अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी विद दिस टूल सिटिंग टू देम, आइदर माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट और गूगल जेमिनाई और बर्ड और ओपेनएआई और सो कुछ, बिकॉज जो आपका एजिमुलेशन ऑफ नॉलेज है वो एट फिंगर टिप्स हो जाता था। जैसे इंटरनेट में आप गूगल में सर्च करके अब आपको 10 पेज देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारा समराइज करके आपके पास पड़ जाता है। नाउ जब आपको कंपेयर किया गया ऐसे किसी रिसर्चर से, तो आप पाएंगे कि आप उनसे 2 से 3 साल एडवांस हैं। तो ये यूनिवर्सिटी जिसमें कि आई थिंक हमारे एक समय 114 डिपार्टमेंट होता था, पता नहीं अभी कितना है, आई रिमेंबर 114 डिपार्टमेंट वेरी वेल इन 1997, दिस इज द राइट प्लेस टू स्टार्ट एआई, बिकॉज इतने यूज केस इंजीनियरिंग से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, ह्यूमैनिटीज से लेके, लैंग्विस्टिक्स से लेके, कॉमर्स से लेके, कोर साइंसेस से लेके और मेडिसिन तक शायद बहुत कम जगह मिलता है। अभी किसी भी आईआईटी में मेडिकल कॉलेज नहीं है, दे डोंट हैव, दे आर बिल्डिंग। मद्रास में बना रहा है और आईएससी में बन रहा है। बीएचयू इज द ओनली प्लेस वेयर देयर इज अ कैंपस, इफ यू स्ट्रेच अलोंग यू कैन फिनिश एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड, जितनी भी चीजें सिखाई जा सकती है इंक्लूडिंग लिंग्विस्टिक्स। तो दिस इज द प्लेस, ऐसी जगह जो होती है मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, जिसमें कि एआई का सबसे बड़ा रोल होता है, उसके लिए ये एक जर्मिनेशन पॉइंट हो जाता है, मेल्टिंग पॉट हो जाता है। और यहाँ की जो रिसर्च और फ्रेमवर्क्स अगर निकल, मतलब हम लोग कोशिश करें और निकल के सामने आए, तो आई एम टेलिंग यू वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू बिकम द वर्ल्ड लीडर टू क्रिएट हाउ विल अ डॉक्टर हु इज यूजिंग एन एआई ट्रीट अ पेडियाट्रिशियन पेशेंट टू एन एडल्ट पेशेंट। एआई में आईक्यू है, ईक्यू तो नहीं है। ईक्यू इंफ्यूज करना है टू मेक इट मोर ह्यूमन, उसके लिए बीएचयू से अच्छी कोई जगह नहीं। दूसरी जो मैं उस क्वेश्चन पे हम बाद में आते हैं, इसका हम सर से जरा सर का व्यू लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ही हैज गॉन। सर से
हाँ। मेक इट वेरी इनफॉर्मल। ठीक है, थोड़ा सा मैं मेरे दिमाग में सुनते सुनते आया कि सर उस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जियो। ऑन द लाइटर साइड सर, कोई रील देख रहा इतना सस्ता डेटा कर देना, अपॉर्चुनिटी आल्सो। बट मैं ये जानना चाहता हूं सर, आपका एक्सपीरियंस होगा रोहित जी इसमें। मैं मध्य प्रदेश का एक किसान हूं और मैं आंध्र प्रदेश के किसी एक रिमोट गांव में मेरा कोई पेशेंट है जो बीमार पड़ता है, या मैं तमिलनाडु के उस जगह हूं जहां सुनामी की वार्निंग आती है। इस डिजिटल जो एक रेवोल्यूशन है सर, इसमें जियो का कितना बड़ा रोल है सर, और एआई इसको और कितना एनहांस कर सकता है? आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। सुनामी तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है शायद, बट ये कितना इतना फार रीचिंग जो इंपैक्ट है वो क्या है सर? कौन सा फोन यूज करते हैं आप? सर मैं एयरटेल यूज करता हूं। जियो मैंने नहीं लिया सर, मैं बर्बाद नहीं होना चाहता था। कितने लोग यहाँ जियो यूज करते हैं देख लीजिए। तो धन्यवाद आप। तो आपने पहले संस्कृत और चीन का भी जिक्र किया था, मैं उस पर जल्दी से आके फिर जियो पे आ जाऊंगा। संस्कृत का भी काशी में हम बैठे हैं, हमने गंगाए और शिवाय की भी बात से शुरू की थी अपना उल्लेख को। संस्कृत में या भारतीय अध्यात्म में कोई ज़रूरी नहीं संस्कृत ही सही, बहुत सारी भारत की भाषाएं जिसमें अध्यात्म है, उसको भी एआई में प्रोग्राम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और काफ़ी हद तक वो है भी। लेकिन हमारी जो भाषणी और भारतीय भाषाओं में एआई की प्रोग्रामिंग हो रही है, उसमें कोई अमेरिका से ड्रोन पे बैठ के नहीं आएगा आदमी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जाएगा और उसको अपनी निपुणता से परिपक्व करेगा। ठीक है। दूसरी बात चीन की, मैंने बैंकॉक की कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, आईसीएस की। वहां जाके मुझे कुछ भय भी हुआ कि कम से कम 70 से 80% जो रिसर्च टॉप एंड पे वर्ल्ड में हो रही थी, उनमें से कम से हो सकता है उसमें सिलेक्शन बायस हो या जो भी कारण हो, लेकिन उसमें जो बड़े बड़े पेपर्स हैं उसमें भारत से कई गुना ज़्यादा चीन, ताइवान, सिंगापुर, जापान वगैरह के युवा अपना रिसर्च कटिंग एज लेवल पे प्रस्तुत कर रहे थे। हम लोग की तरह बेसिक लेवल पे कहना कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नौकरी जाएगी नहीं जाएगी, ये नहीं लेवल है। बहुत हाई लेवल पे काम हो रहा है दुनिया में। और हम जो मन बना के बैठे हैं कि भारत ही एक बड़ी महाशक्ति बनेगा भविष्य के विश्व में, कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं किस्मत में ये नहीं लिखा हुआ है कि महाशक्ति बनना ही है। बहुत बड़े बड़े आपके सामने चैलेंज आएंगे और बहुत छोटा देश जिसको एक तरह से भारत की जो जनसंख्या को लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा हमारा अस्त्र है ये, लेकिन एक रिसोर्सेज कर्स भी एक कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट में, दैट टू मच रिसोर्स हैज नॉट बीन यूज्ड दैट वेल। यू कैन डू अ simple Google search on resources curse, go to a case written by Richard Vitor at Harvard Business School, where he has compared Saudi Arabia, which is endowed with land, petrol, versus Singapore, which has neither. उसके पास पानी भी नहीं है अपना, वो भी मलेशिया से इंपोर्ट करता है, और दोनों को उसने कंपेयर किया है। तो जो भारत के जो संसाधन हैं उन पर अगर हम आराम से बैठ जाएंगे तो हो सकता है कि हमसे कुछ बहुत छोटे दिखने वाले देश हमसे हाथ जोड़ते जोड़ते हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ये तो आपके दोनों बातों का मैंने उल्लेख किया। संस्कृत का भी स्थान है, चीन का भी स्थान है, और भारत को अपने स्थान को बनाने के लिए बहुत तेज दौड़ना होगा। और रेचल चुंग की बात याद रखनी होगी, क्योंकि हर तरफ से दुनिया में अच्छी बातें हो रही हैं, उसको समझना हमारे ऊपर है कि उसको एआई के वर्किंग को अगर हम समझेंगे तो शायद बेहतर कर पाएंगे। रही बात जियो की, देखिए साहब, जियो ने जब 16 रुपये, आप में से ज़्यादातर तो उतने छोटे होंगे कि आपके पापा मम्मी यूज़ करते थे, लेकिन 16 रुपये आउटगोइंग और 16 रुपये इनकमिंग, और जो वो थी क्या बोलते थे, रोमिंग। रोमिंग जानते क्या होता है?
नहीं पता होगा ज्यादातर को, मतलब कॉन्सेप्ट सुना होगा घर में जब लोग कहते हैं 1.5 रुपए किलो घी मिलता था, उस तरह की बात डाइनिंग टेबल पे जब दादा दादी करते हैं, उस तरह की बात हो गई आज रोमिंग। आज 13 से 15 गीगाबाइट पर पर्सन यूज हो रहा है, और एक गरीब बिहार से संबंध रखने वाला मेरे साथ सहयोगी अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देख सकता है, उसे सुनता नहीं है उसकी बात, उसको देख सकता है। वो कालका मेल में दौड़ के जाके, मगध एक्सप्रेस में जाके पैसा नहीं देता कि दौड़ते दौड़ते अरे भैया छुट्टी मिली 2 घंटे के लिए, जरा 2,500 रुपया ले जाना परिवार को दे देना। वो यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर करता है। यूपीआई का बैकबोन क्या है? यूपीआई का बैकबोन है भारत का डिजिटल विकास। डिजिटल विकास कहां है? तो एयरटेल ने भी किया है कुछ, मयंक जी हैं वहां उसके बात करने के लिए, और वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा निवेदन यही है कि अगर कोई अच्छी दवा है जिससे आपके बड़े बूढ़े लोग, आप स्वयं कोई दवा खाते हैं जिससे ठीक हो जाते हैं, उसी दवा का अगर आप 100 गुना ले लेंगे तो वो दवा आपके लिए जहर बन जाएगी। तो हमारा काम था एक डिजिटल इंडिया के बुनियाद में अपना छोटा सा सहयोग देना। वो भारत के इंजीनियर्स ने उस टेक्नोलॉजी को बनाया। कहीं दुनिया में डेटा और वॉइस एक साथ नहीं मिलते थे। 4G टेक्नोलॉजी को वोल्टी टेक्नोलॉजी में तब्दील करना किसी ने नहीं किया था एट स्केल। जब सैमसंग के, नोकिया के इंजीनियर से बात हुई तो उन्होंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, और जब मैकेंजी इत्यादि से बात हुई उन्होंने कहा ऐसा मार्केट ही नहीं है। जिस आदमी को फोन पे बात करनी है उसको क्या और चीज की जरूरत है? डेटा तो साहब बड़े कंप्यूटर जिसके घर में हो वही डेटा यूज करेगा। आज क्या है, एक इस सभागृह से बाहर भी जो बैठा हुआ व्यक्ति है, वो जिस तरह से भी उसको, चाहे वो MIT का कोर्स ज्वाइन करना हो, चाहे उसको पैसा ट्रांसफर करना हो, चाहे उसको किसी भी जो क्या कहते हैं मनोरंजन का ही उसको पिक्चर देखनी हो, वो देख रहा है। आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? मुझे नहीं समझ में आ रही क्या प्रॉब्लम है। हाँ, ये जरूर है कि सस्ता करने की जो हिमाकत है या जो जरूरत है या जो गलती है वो की है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया, भारत फिर से 16 रुपए मिनट की आउटगोइंग और 16 रुपए इनकमिंग की दुनिया में, एयरटेल की ही दुनिया थी वो, उसमें चला जाए, स्वागत है आपका साहब। मैं सर के बात को पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए 2-3 पॉइंट और बताता हूं, जो मैं कमिंग फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप वर्ल्ड, अगर जियो नहीं होता तो शायद नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स भारत में आधे भी नहीं होते। आज जो आप स्विगी, जोमैटो इत्यादि, ब्लिंकिट इत्यादि 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 देखते हैं, इसके पीछे जियो ही है कि हर आदमी यूज कर रहा है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल है, राइट। इसीलिए अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो शायद भारत के स्टार्टअप रेवोल्यूशन को वर्ल्ड में नंबर 3 बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। नाउ द फ्लिप साइड जो मयंक ने कहा, मतलब फ्री है तो ये गलत हो जाता है, बट दैट इज आवर पर्सनल काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। नहीं तो इतने स्टार्टअप नहीं बन सकते हैं, असंभव है अगर हम डिजिटली कनेक्ट नहीं होंगे तो, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे लैंग्वेज में हो, चाहे हम जैसा डीप टेक हो, चाहे AI हो। अभी दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था कि आज के डेट में अगर इंडिया आगे है तो उसमें डिजिटल इंडिया आगे है, राइट। बाकी चीजें अभी भी हम थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब टेलीमेडिसिन आ रहा है लेकिन नहीं आया है, बट डिजिटल इंडिया ने ऐसा बैकबोन दे दिया है जो आपके साथ भी है। और मैं एक बात फिर से आपको स्टार्टअप की तरफ ले आऊंगा, बिकॉज वन ऑफ थिंग आई लुक फॉरवर्ड इज हैविंग मोर एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम BHU। जैसे कई बार होता है, मेरी 2 पहचान है, IIT दिल्ली से भी मास्टर्स हूँ, तो IIT दिल्ली वाली ग्रुप एंटरप्रेन्योरियल वाली बड़ी हो जाती है और BHU वाले 3 लोग मिलते हैं तो फिर बोलते हैं यार वहाँ बढ़ाओ। तो मेरा आप लोग से विनम्र निवेदन है, आप शुरू कीजिए। आज की डेट में आप AI को अगर अपना प्रोजेक्ट में भी लेते हैं ना, तो हो सकता है उस प्रोजेक्ट में अगर आपने AI इन्वॉल्व किया तो उससे आपको कुछ ऐसे आइडियाज आएंगे, अरे इसको तो हम ऑफर कर सकते हैं एज अ सर्विस और एज अ प्रोडक्ट। आइडिया इज टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। तो मेरा आप, और इरिस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट, अगर आप कंप्यूटेशन कॉमर्स में हैं तो आप देखिए कि फिनटेक में क्या कर सकते हैं,
अगर आप लैंग्वेज में हैं तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आज भी बहुत बड़ा बैरियर है, राइट? उसमें बहुत सारा काम हो सकता है। अगर आप कोर साइंसेज में हैं तो क्वांटम टेक है या डीप कैलकुलेशंस हैं, मॉडलिंग है, सिमुलेशन है, ये सब में एआई आपका सबसे बड़ा साथी हो सकता है। एंड आई कैन टेल यू, मैं इजरायलियों के साथ 16 साल काम किया हूँ, काफी समय गुजारा भी वहां। दैट्स अ कंट्री ऑफ लेस देन 90 लाख पीपल एंड द कंट्री एवरीबडी इज स्केयर्ड, एवरीबडी इज एप्रिशिएटिंग, बिकॉज वहां का जो 14, और ये हमारे यहाँ भी कल्चर है, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, बट वी हैव टू डू मोर बिकॉज हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर आप नंबर ऑफ स्टार्टअप देखेंगे तो ऑब्वियसली हम इजराइल से बहुत ज्यादा हैं, बट पर कैपिटल स्टार्टअप देखेंगे पर माइल में तो हम कम हो जाते हैं। उसका रीजन है कि फिर से आई वांट, जो बीएचयू है, काशी है, जहां हम लोग फाउंडेशनली बहुत स्ट्रांग थे, साइंस में आज भी हैं, वेरी स्ट्रांग। मैं जब इंटरव्यू वगैरह देने गया था उस जमाने में तो टीआईएफआर से हर जगह हो जाता था, बिकॉज बोलते थे हाँ बीएचयू बहुत स्ट्रांग है। वी हैव टू मेक इट लिटिल अबाउट मार्केट सेंट्रिक। जियो का बेसिक है, गूगल मैप्स है, दुनिया भर की एआई इंजन्स हैं आपके पास, और उसको जब आप रिसर्च और अपने काम में लगाना शुरू करेंगे तो आई कैन टेल यू फॉर ग्रांटेड दैट सम ऑफ द थिंग्स व्हिच वी आल्सो कैन नॉट थिंक ऑफ राइट नाउ, दैट यू गाइस विल कम आउट ऑफ इट, एंड दैट्स वेयर इज आवर विनिंग। एट द एज ऑफ 50 आई हैव मे बी अनदर 15 years टू वर्क, बट देन आई हैव टू गिव द बैटन टू ऑल ऑफ यू। व्हाट वी वांट इज कि जिस तरह हमने कंप्यूटर जमाने में जब हम लोग जॉब ज्वाइन किए तो मेड इंडिया फोर्स, टुडे इंडियंस आर नोन टू बी अ वेरी गुड CEOs, Sundar Pichais and Satya Nadellas and even Indian CEOs, right? So next what we look is, can India create Elon Musk and Mark Zuckerberg from the campuses? And this is difficult to happen at the age of 50. It happens at the age of 24. क्योंकि आपके पास टाइम होता है, आपके पास अवेयरनेस होता है, and you can do more mistakes, learn fast and do that. In summary, what I'm trying to tell you, choose these new topics which we are trying to give it to you. Machine learning, AI, neural network. जाके स्टडी कीजिए, देखिए क्या हो सकता है। अपने प्रोजेक्ट में बोलिए कि मैं इसको एआई के थ्रू सॉल्व करता हूं, मशीन लर्निंग के थ्रू सॉल्व करता हूं, मैक्सिमम आप फेल करेंगे, दैट्स वही होगा ना, बट आप उससे इतना चीज सीख जाएंगे दैट यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस थिंग इन योर डे टू डे लाइफ। एंड देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड डिग्रीज, देयर इज अ वर्ल्ड वेटिंग फॉर यू टू बिकम अ गुड प्रोफेशनल, गुड एंटरप्रेन्योर, जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरा विनम्र निवेदन है, और ये इसकी बहुत सारी टूल्स फ्री में अवेलेबल हैं। आप सबके पास लैपटॉप और कंप्यूटर होगा, आई कैन टेल यू दैट मोस्ट ऑफ यू विल हैव, या कैंपस या डिपार्टमेंट में होगा, ये फ्री में अवेलेबल होती है। इट्स जस्ट अबाउट टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप टू इंटर इनटू दैट डोमेन एंड यू विल बी बिकम 80% बेटर देन 80% स्टूडेंट्स ऑफ योर एज। सो यहां पे मैं एक आखिरी सवाल दोनों लोगों से, दिव्यांशु शुरू करेंगे और सर खत्म करेंगे। स्टूडेंट बोल सकते हैं सर मैं अपना कौतूहल उनके नाम पे बुरा कर ले रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज तो आप मिलेंगे नहीं, उनके नाम पे मैं अपनी रोटी सेक लेता हूँ थोड़ी सी, फिर एक दो चाहेंगे तो हम खड़ा कर लेंगे। सर डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी, डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन, एआई, डेमोक्रेसी हम आज यहाँ खुल के बात कर ले रहे हैं सर, शायद डेमोक्रेसी ही की वजह से कर पा रहे हैं हम ये बात, नहीं तो इतनी बातें संभव नहीं थी। रेजिमेंटेड रजीम होता है, एआई क्या क्या कर रहा है सर, क्योंकि जानना जरूरी है सर कि हम डीप फेक वीडियो पर रिएक्ट करेंगे, कोई स्टेट काउंटर रिएक्ट करने में 24 घंटा लग जाता है उस चीज को संभालने में। तो हाउ टू स्पॉट अ डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन, व्हाट टू डू, मतलब इट इज अ वेरी जेनरिक क्वेश्चन सर, इट इज नॉट टेक्निकल। तो मैं दोनों लोगों को सर 2-2 मिनट के लिए चाहूंगा सर, ज्यादा नहीं। मैं इसको बताता हूं हम कैसे स्पॉट करते हैं कि ये डीप फेक है जो हमारे पास थ्रेट्स आती हैं। तो हम लोग एक एरिया ऑफ डोमेन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहां मशीन को जो आप इंटरनेट से जोड़ते हैं उस पर हमारा एक प्रोडक्ट है जो कि ग्लोबली एक अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। तो हम लोग दुश्मन को कैसे फूल करते हैं कि हमने कुछ प्रोडक्ट लाया है, दुश्मन समझेगा ये अटैक के लायक है, उसको अटैक के लायक होने, उसको हनी पॉट बोलते हैं। तो हनी पॉट क्या होता है, वो जैसे आपका मान लीजिए अभी राउटर है या कैमरा लगा हुआ है या ये सिस्टम लगा हुआ है, अगर ये इंटरनेट पे है तो आई एम फ्रॉम आउटसाइड, अगर कोई मैं अटैकर हूं या हैकर हूं तो मैं इसको बंद करना चाहता हूं। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, एज अ डिफेंडर आई विल लाइक टू डिफ्लेक्ट हिम और हर, जो भी है ना। तो मैं क्या करूंगा कि एक सॉफ्टवेयर से इसको सिमुलेट कर दूंगा। अगर हम और आप आंख बंद करके बात करें तो हमको नहीं पता कि गूगल जेमिनी आंसर कर रहा है या चैट जीपीटी आंसर कर रहा है, वी यूज द सेम थिंग। लेकिन डिफरेंस कहां है, चैट जीपीटी का एक क्वेश्चन का आंसर हर बार ऑलमोस्ट सेम होता है।
तो जब आप रट कर झूठ बोलते हैं तो आप वही बात बोलते हैं, दादी बीमार थी इसलिए ऑफिस में लेट हो गया, राइट? तो देयर आर सर्टेन न्यूएंसेस जो कि एआई सिस्टम्स में अब अनर्थ होने लगी है। हम लोगों ने कुछ अनर्थ किया, अभी हमने पेपर भी प्रेजेंट किया उसके ऊपर, कि इफ द आंसर्स और रिस्पॉन्सेज आर इन दिस कैटेगरी, द चांसेस ऑफ दिस बीइंग अ डीप फेक इज 8 out of 10 और 9 out of 10, बिकॉज उसका जो लैंग्वेज है उसका भी, भाई एआई भी एक लैंग्वेज टोकन जनरेट कर रहा है। हमने उसको स्टडी करना शुरू किया एंड वी वेर एबल टू फूल वन एआई इंजन विद द अदर वन, बिकॉज वी स्टार्टेड टेलिंग दैट दिस इज डीप फेक, वो कंफ्यूज हो गया पूरा। तो देयर इज ए पैटर्न इन एवरीथिंग, देयर इज ए पैटर्न इन एआई ऑल्सो। ओनली थिंग व्हाट वी डोंट टेक इनटू कंसिडरेशन इज कि कोई भी हमको फोन करके बोला कि इस लिंक पे क्लिक कर दो और ओटीपी बता दो, तो हम मानते हैं वो बैंक से ही कॉल आ रहा है। दैट इज हैपनिंग विद एआई ऑल्सो। वंस यू स्टार्ट सीइंग एन आंसर पैटर्न, you will find out ये chat GPT generated text है। Once you start seeing that pattern, or it is easy, मतलब it's not a very complex mathematics, very frankly, it's compared to text and you get it। Computer science का कोई भी लड़का कर लेता है, या लड़का या लड़की। तो what I'm saying कि world is now bringing this checks and balance, कि धीरे धीरे आप इसको रोक पाए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं आप लोग की एज का था और नया नया इंटरनेट आया था तो हमारे पास नहीं था, बट मेरे कोई भी पड़ोसी का पासवर्ड नहीं होता था, तो मैं 2 साल बिना पासवर्ड के इंटरनेट से अपना काम चलाता रह गया। तो जब टेक्नोलॉजी न्यू रहती है तो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू मिसयूज इट, एंड दैट्स ट्रू विद एआई आल्सो टुडे। बट द वे थिंग्स आर मूविंग, इंक्लूडिंग अस कंट्रीब्यूटिंग बैक टू द सोसाइटी, आई कैन टेल यू दैट आफ्टर maybe after 1 to 1.5 years there will be strong checks and balances that ये एआई ऐसा जवाब नहीं देगा। जब चैट जीपीटी का मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ, चैट जीपीटी जब शुरू आया तो वी यूज्ड अ लॉट टू क्रिएट मालवेयर एंड वायरस, बिकॉज हम रिसर्च करते हैं। अब चैट जीपीटी वो नहीं करता है, बिकॉज इट अंडरस्टूड कि ये जो रिक्वेस्ट है ये ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा नहीं है, उसमें वो चेक्स एंड बैलेंस डाल दिया गया और धीरे धीरे ये चीज आपको लीगलाइज भी होता जा रहा है। फाइनली अब एआई पे आई है कि एक मशीन जिसको ये समझ में आ गया कि ये गलत चीज है, वो आप चाहेंगे भी तो वो नहीं करेगा, द वे वी डू दैट। सो आइडिया इज टू पुट दैट एथिक्स, बैलेंस एंड डिसिप्लिन इन द एआई, दैट विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम।